جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کے سیگمنٹ میں. آپ نے ادارہ بھی دیکھا اور جو شخصیت ہیں وہ ہم تو لٹرلی اپنے بچپن سے ان کو مختلف حوالوں سے دیکھتے آئے ہیں, اپنے علاقے میں بھی اپنے شہر میں بھی, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چلتا پھرتا رکھیں انشاءاللہ, صحت کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ طول عمر عطا فرمائیں. باقی باقاعدہ تعارف اقرار بھائی کروائیں گے شخصیت کا بھی اور ادارے کا بھی. جی بالکل, ظاہر ہے ہم سب کا ایک بڑا قلبی تعلق ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے. ہم نے بہت سارے پروگرامز بھی ریکارڈ کیے, بہت سارا کام ہم بھی دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کام سے اچھی طرح سے متعارف ہیں. اور جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں اگین سب کے لیے بہت قابل احترام جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب, پاکستان کے سابق وفاقی وزیر بھی رہے, بہت سارے قلمدان رہے ان کے پاس, اور بہت ساری یونیورسٹیز, بہت ساری جامعات کی سنڈیکیٹ ممبر کے طور پر بھی بہت ساری خدمات, اور بہت سارے اور بہت معتبر حوالے حاجی حنیف طیب صاحب کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے شاید یہ سب سے معتبر حوالہ ہے. اللہ کا کرم الحمدللہ. یہ 40 کے قریب اسپتال ہیں, اور پھر ظاہر ہے آرفنیج ہیں, یتیم بچوں کی پرورش کا, کفالت کا, اور اولڈ ایج ہومز, اور بے شمار ایسے شعبہ جات کے جن میں کام ہو رہا ہے. ایسا بڑی نوازش, بہت شکریہ. آپ نے تمام عمر الحمدللہ لوگوں کی خدمت میں اور ان کی بھلائی کے لیے وقف کی. 1983 میں غالباً 1983 میں المصطفیٰ کیا سوچ تھی, اور پھر کیسے گزشتہ بیتے ہوئے برسوں میں آپ کا جو ویژن تھا یا سوچ تھی آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا؟ سب سے پہلے تو میں ARY ڈیجیٹل کا, آپ دونوں احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا. جزاک اللہ. دراصل اس کراچی شہر سے 3 مرتبہ MNA بن کر اور 4 فیڈرل منسٹریز میں پورٹ فولیو کر کے میں نے اندازہ لگایا کہ پاکستان کے اسکولوں میں کسی کو صحیح تعلیم نہیں ملتی. بالکل صحیح. پاکستان کے تعلیمی اداروں کے, صحت کے اداروں میں, ہاسپٹل میں علاج نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1983 میں بنائی گئی, اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ نبی کی نسبت سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بنائی گئی. اس لیے ہر کام جو بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے ہوتا چلا گیا, وہ الحمدللہ ہوتا چلا گیا. مثلا یہ ہے, ایک ہونٹ کٹے بچے کا آپریشن کرنا مشکل کام ہے. اگر نہیں ہوگا تو بچے کی تعلیم نہیں ہوگی, زندگی بھر مسکرائے گا نہیں, شادی بھی نہیں ہوگی. لیکن 68,000 سے زائد فری آپریشن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کر چکی ہے, اور یہ سفر الحمدللہ جاری ہے. یعنی 68,000 بچوں کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی, اس کے بعد تبدیل ہو گئی, تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے, کام بھی کر سکیں گے معمول کے مطابق, اور شادیاں بھی, اور ظاہر ہے زندہ باد. اللہ نے یہ کرم کیا الحمدللہ. اور الحمدللہ جب ہماری مشینیں ذرا پرانی ہوئیں تو رجب طیب اردگان صدر ترکیہ کے ماتحت کام کرنے والی تنظیم ہے ٹیکا, انہوں نے ساری مشینیں تبدیل کروا دی. کیا کہنے, اور نئی مشینیں لگ گئیں تاکہ آپریشن ذرا اور اچھا زندہ باد اور بہتر طریقے سے ہو سکے. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک ہی صاحب خیر نے ختیجہ گرلز کالج کورنگی میں المصطفیٰ کو بنا کر دے دیا. اچھا. اور اس میں جو کمپیوٹر لگے ہیں وہ سارے ٹیکا نے فری آف چارج المصطفیٰ کو لگا کر دیے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کام کریں, اگر آپ کی نیت صاف ہے بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی آپ کے لیے پیدا کرے گا. مثال کے طور پر اس وقت المصطفیٰ میں جو ایکس رے کی مشین ہے وہ باقی سوشل ویلفیئر تنظیموں میں کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان کے کراچی کے کونسل جنرل نے المصطفیٰ کے کام سے متاثر ہو کر جاپان میں ایک ایکس رے مشین خریدی, وہ وہاں سے یہاں آئی, یہاں انہوں نے ٹریننگ بھی کی ہمارے اسٹاف کی, لگا بھی دی, اور جو بھی آتا ہے اس ایکس رے مشین کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے. انہوں نے ہی 3 آپریشن تھیٹرز الحمدللہ المصطفیٰ میں لگا دیے, اور اس میں بیک اپ کے لیے جنریٹرز بھی لگا دیے جو گیس سے چلتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کام تو کرنے کا بندے کو اگر ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرماتا ہے.
एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के मोहसिन मोहसिन थे, पाकिस्तान। और मेरे भी वो दोस्ताना मरासिम मोहब्बत वाले ताल्लुक़ थे। उन्होंने मुझे कहा कि हाई साहब, ये अल मुस्तफ़ा की जो ब्लड बैंक है ना, ये अब पुरानी हो गई है, अब नई आ गई है बहुत ज़्यादा, आप इसको चेंज करें और नई लगाएं। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह आप कहते हैं तो चेंज कर लेंगे। मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा, तो उनका आप एस्टिमेट लगा लें। मेरा अपना गलत अंदाज़ा था कि 28-30 लाख रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन जब हमने एस्टिमेट निकलवाया तो 1 करोड़ रुपए का निकला। अच्छा, लेकिन 5 भाइयों को मैंने फ़ोन किया कि ये एस्टिमेट भेज रहा हूँ और मैं आपके यहाँ चाय पीने आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। चाय पीने के लिए गया, पांचों ने अपना स्टडी किया और स्टडी करने के कहा ये हम कर रहे अपनी हैं। तरफ से आपको फ्री ऑफ चार्ज लगा देंगे। हक कहने हैं। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। सवाब इस तरह मुहैया कर देता है। इंशाल्लाह। ये पोलियो की इरेडिकेशन के लिए ये मैं आप दोनों के लिए इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की कापी हक लाया हूँ। कहने हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, ज़बरदस्त। एक आपकी है, ये मैं इकरार साहब को पेश करता हूँ एक उनकी। इकरार साहब को दे दीजिए, एक हाजी अब्दुल रऊफ साहब को मैंने दे दी है, अच्छा, कोई शुक्रिया बहुत सर, खुश बड़ी हुए। नवाजिश। और इसका फिर तर्जुमा सिंधी में, पश्तो में, उर्दू में, सब में हमने करवाया, ताकि ये एक सलमान इकबाल साहब के सलमान भाई के लिए। भाई जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे, ताकि और ये अंदाज़ा हो सके कि काम किस तरह से हो सकता है। अभी आपने जिक्र किया था ओल्ड एज होम का, नहीं नहीं, इसमें बोला। ओल्ड एज होम का जिक्र किया था। हमारे यहाँ जो ज़ईफ़ुल उम्र फ़र्द हैं उनको घरों से निकाल दिया जाता है, वो बोझ बन जाते हैं। जब जवान होते हैं तो 8 बच्चों को पालते हैं, जब ज़ईफ़ होते हैं तो बोझ बन जाते हैं। लेकिन हमने उसका नाम रखा है गोशे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या बात है। वाह। और जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनको बोझ बना करके ख़वातीन, जवान ख़वातीन या दामाद घर से निकाल देते हैं, हमने उनका नाम रखा है गोशे खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा। सलामुल्लाह अलैहा, क्या कहना। ताकि लोगों के दिलों में एक मोहब्बत भी पैदा हो। यतीम खाना जो हमारा है उसका नाम यतीम खाना नहीं है। जी, वहाँ जाने का इत्तेफाक भी हुआ मुझे बहुत आप बार। तशरीफ भी लाए हैं, जी, जी। इंशाल्लाह और भी आप आएंगे। जरूर, जरूर। और हम जदीद आएंगे तो अब देखेंगे बच्चियों का यतीम खाना भी 5 मंजिला माशाअल्लाह। तामीर हो चुका है। कहने। इफ्तिताह की डेट मिलते ही आप हजरात को भी तकलीफ देंगे, आप भी तशरीफ लाएं, अल्लाह। तो आप खुश होंगे। 5 मंजिला, क्या उसमें कहने। कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता, वाह वाह वाह। बच्चियाँ ही उसमें होंगी, उनकी तालीम और तरबियत भी होगी, तीन के जिम्मे ही सब। एजुकेशन भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी रखने में एहतियात करते हैं कि बच्चों के इस इदारे का नाम रखा है अल मुस्तफ़ा माई होम। जी। किसी यतीम बच्चे से पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, माई होम में। माई होम मेरा घर है, मैं उसमें रहता हूँ, मैं यतीम खाने में रहता हूँ। वो ये नहीं कहेगा, ये बहुत सी बातें हैं। जी जी जी। लेकिन मेरे साथ चूँकि अब मुझे उम्र पूछी नहीं मेरी ऑफ द रिकॉर्ड हाई साहब से उम्र पूछ रहा था, माशाल्लाह। पूछ रहे थे, तो अल्लाह किसी का मोहताज न करे। आमीन। आमीन। काम चल रहा है तो मैं बेटे को भी अब ट्रेनिंग भी की और साथ भी लाया, ताकि वो भी इन इश्यूज पर जरूर। बात आपके सामने करें। जज़ाकुमुल्लाह, परवरदिगार दो आलम आपका साया हम सब के सरों पे सलामत रखे। आपकी बड़ी आमीन। खिदमात है माशाल्लाह। और ये तो ज़ाहिर है हमा जहत मुख्तलिफ काम हैं जो हो रहे हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम, और हम के ज़ाहिर है अहमद भाई आपका भी शुक्रिया। और ज़ाहिर अब वो ये रिवायत मुंतकिल हो रही है अगली नस्ल को। तो ये ज़रा बताइएगा, वैसे तो डिटेल्स भी आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारा UAN नंबर भी है, ऑनलाइन डोनेशंस अतियात भी दिए जा सकते हैं, और क्या क्या तरीक़े हैं। ज़ाहिर है चूँकि इस इदारे को और जिसका जितना बड़ा काम हो गया है, फैल गया है माशाल्लाह, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग आगे बढ़ें और हाथ बटाएँ। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी आप अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने याद किया अल मुस्तफ़ा को हर साल की तरह इस साल भी। तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जैसे कि वीडियो में सब लोगों ने देख भी लिया कि 10 हॉस्पिटल्स हमारे, जी माशाल्लाह। 35 क्लिनिक्स हैं, 16 स्कूल हैं, कॉलेज है, 2 ऑर्फनेजेस हैं, 2 सीनियर सिटीज़न होम हैं,
इंडस्ट्रियल होम्स हैं और उस तरह बहुत सारी चीज़ों में। फिर हेल्थ में देखें तो कैटरेक्ट, थैलेसीमिया, डायलिसिस और बहुत सारी ऐसे स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स हैं जिस पे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ती है, बिलखुसूस जैसे फ़लस्तीन में पिछली मरतबा भी आपसे डिस्कशन हुई थी, फ़लस्तीन में, बर्मा में, बांग्लादेश में, कहीं भी ऐसी कोई डिज़ास्टर हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहने फ्लड की सूरत में, ज़लज़ले में, कोई जैसे फ़लस्तीन में जो मामला चल रहा है या जहाँ जहाँ भी जो मामला चल रहे हैं, तो अल-मुस्तफ़ा पाकिस्तान के अलावा भी जहाँ जहाँ पहुँच सकती है वहाँ पहुँचती है। और मेडिकल एड हो या फूड एड हो या इमरजेंसी रिलीफ के तौर पे जो भी सहूलियात या जो भी आसानियाँ फ़राम की जा सकती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वो फ़राम की जाएँ। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि डोनेशन के हवाले से, तो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान में भी और यूएस में भी रजिस्टर्ड है। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं, जो यूएस में रहते हैं वो यूएस की वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं। नंबर्स भी मौजूद हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। al-mustafa.pk जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, al-mustafa.pk जो है पाकिस्तान की है और al-mustafa.us.org जो है वो यूएस की है। परफेक्ट, ये अच्छा हो गया ज़रा हमने। तो जो यूएस में हैं लोग, वो यूएस में भी 501c ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे जाके भी डोनेट कर सकते हैं। और मैं बल्कि आपके तवज्जुह से दावत भी दूंगा कि सिर्फ डोनेशन की बात नहीं है, बल्कि जैसे कि आप आए हैं, ये आके देखिए अल-मुस्तफ़ा का काम। हाँ, आए देखिए अल-मुस्तफ़ा क्या काम कर रही है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, आपकी कोई ऐसी स्किल है जो आप हमारे आज के बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, तो मतलब जिस तरह भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आए ये तो घंटों दरकार है, ऐसा काम है, ज़ाहिर इसका बहुत जिक्र किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर इस सेगमेंट का वक्त मुख्तसर है, लेकिन वही बात अहमद भाई ने जो कहा कि आप जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ ख़ुद जाकर देखिए, आपको अंदाज़ा हो कि कैसा शानदार काम किया जा रहा है। जिस माई होम का जिक्र किया, जो यतीम बच्चों के लिए उनका अपना घर है, क्या बेहतरीन तरीके से उनकी तरबियत की जा रही है, किस तरह से वो कॉन्फिडेंटली ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तालीम का शानदार, रहने का उनका बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम, और उसके अलावा बाकी जितने भी इदारे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम काम कर रहे हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त कि प्लीज़ हाथ बटाइए अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के। छोटी दो बातें करूँगा। एक तो सबसे ज़्यादा इज्तिमाई शादियाँ फ्री ऑफ चार्ज गरीब ख़ानदानों में पूरे पाकिस्तान में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह। करती है। वाह, दूसरा ये कि फ्री मेडिकल कैंप, एक आदमी घर पे ही है और अनकरीब शुगर का मरीज़ होने वाला है, तो फ्री मेडिकल कैंप में जब जाता है तो उसको चेक करके पता चल जाता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है, क्या बात है, उसके ब्लड शुगर की क्या पोजीशन है, और उसको कुछ दवाएं भी दी जाती हैं, हिदायत भी दी जाती हैं। तो इस तरह काम अल्लाह ताला के फजल से बढ़ रहा है और आपकी दुआ से इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। सलामती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए और ये काम लेता रहे इंशाल्लाह। और आपने जिन अजीम हस्तियों का नाम लिया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून जन्नत सलाम अलैहा के सदक़े में अल्लाह ताला बहुत कामयाबी भी अता फरमाए और इंशाल्लाह इसका अजर तो वही देंगे आपको, इंशाल्लाह वही साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत दुआएं हाजी साहब और नाज़रीन, आप सबके भी सामने सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप सब लोगों से गुजारिश कि अपने हिस्से की शमा इसमें ज़रूर जलाएं और अपने हिस्से की शमा। ईजी पैसा भी जला रहा है। ईजी पैसा डिजिटल बैंक इस रमज़ान बन गया है। ईजी पैसा ईजी डोनेशन वाला बैंक, वो यूँ कि आप ईजी पैसा ऐप अगर डाउनलोड करते हैं, सो इमीडिएटली यू विल गेट एक्सेस टू 60+ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, और जिनको आप एक क्लिक पर डोनेट कर सकते हैं जितना भी चाहें। आप जितना भी डोनेट करेंगे 5% जो है विकरार भाई, वो ईजी पैसा इसमें 5% अपनी तरफ से भी इजाफी रकम ऐड करेगा इसमें इंशाल्लाह। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उलमा कराम के साथ हम हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।